Good morning, students. Today we will be revising some concepts of chapter 1, that is real numbers. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपके सिलेबस से हट गया है, तो लेकिन आपको HCF निकालना आना चाहिए by prime factorization method. And you have to remember one important point, that is HCF into LCM of two numbers is always equal to the product of the numbers. For example, you are given a question, HCF of 306 and 657 is 9, and you have to find the LCM. Numbers कौन से हुए? 306 और 657. By using this concept, 9 into LCM is equal to 306 into 657. Therefore, LCM is equal to 306 into 657 divided by 9, and that we get as 22338. Then there are some word problems also in your textbook, which involves the use of HCF and LCM. A problem is that there is a circular path around a sports field. Sonia takes 8 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same, and they start at the same time from the same point, and they are going in the same direction also. After some time, they will meet again at the starting point. Now in this case, we have to find the least time after which they meet again at the starting point. So therefore we have to find LCM of 18 and 12, and that comes out to be 36. Therefore after 36 minutes, Sonia and Ravi will meet again. Then there is one more question which is frequently asked, that is if you are given a number, you have to find whether it has a terminating or a non-terminating decimal representation. What we do is, first we bring it to the lowest form, and if it is already in the lowest form, then we find the prime factors of the denominator. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया 5 to the power 5. अब इसका टर्मिनेटिंग, इसको डेसिमल, ये तो पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर की फैक्टर्स 2 या 5 या सिर्फ 2 and 5 रहें तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा. इसके अलावा अगर कोई और प्राइम नंबर आ जाए डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. तो यहाँ पे क्योंकि 5 to the power 5 आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग है. अब 3125 से 13 को डिवाइड करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑलवेज ईजियर दैन डिवीजन. नाउ हाउ टू फाइंड द टर्मिनेटिंग डेसिमल? इसकी पावर 5 है तो हम इसको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मतलब डिनोमिनेटर को हमने 10 के मल्टीपल में बनाना है. ठीक है, उसके लिए आपको जो भी मल्टीप्लाई करना पड़े वो आप डिनोमिनेटर में करिए, एंड सेम नंबर इज़ टू बी मल्टीप्लाइड इन द न्यूमरेटर ऑल्सो. अब 2 की पावर 5 हो गया 32, और डिनोमिनेटर में ये हो गया 5 into 5 की पावर 2 into 5 की पावर, दैट इज़ 10 to the power 5. अब 13 into 32 तो आप ओरली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 416 divided by 10 to the power 5. Therefore decimal representation is 0.00416. Then there is one more important question कि आपको irrational number लिखना आ जाता है. आपको irrational number कोई भी 2 digits ले लीजिए, any 2 digits, think of any 2 digits. Say I thought of 7 and for example say 3. What I do is, एक बार 7 लिखा, चलो डेसिमल लगा लेते हैं, 7 point something ले लेते हैं. एक बार 3 लिखा, फिर एक 7, फिर 3 को रिपीट कर दिया, फिर 7 एक ही बार लिखा, फिर 3 को 3 बार कर दिया, फिर ये 7 हो गया. तो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बिकम्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. रिपीटिंग का मतलब होता है हम बार लगा सकते हैं.
अगर ये होता 7.373737 तो हम 37 के ऊपर बार लगा सकते थे, बट वो हो जाता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और वो बन जाएगा आपका रैशनल नंबर। लेकिन जब ये नॉन रिपीटिंग बनाए, और नॉन रिपीटिंग में मतलब हमें पैटर्न में नहीं लाना है, दैट मीन्स 37 एक बार 33 कर दिया, फिर 7 एक बार रखा, फिर 3 बार कर दिया, अब हम बार नहीं लगा सकते। इसी डिजिट्स को लेके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 को 2 बार कर दिया, 3 को एक ही बार रहने दिया, फिर 3 बार कर दिया, सो ऑन। तो आई होप नाउ यू कैन write an irrational number by yourself. Then you must remember, for MCQ type of questions, these are some few questions, and then in the chapter polynomials you might be asked to find zeros. कुछ तो MCQ इस तरह से भी हो सकता है कि भाई एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके ज़ीरोज़ कितने होंगे। यू मस्ट रिमेंबर, फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 1, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1. फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 2, सो ऑन. अब अगर आपको ग्राफ दिया हो और आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालिए, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आई एम टेकिंग सम few graphs. Number of zeros is nothing but the point where the graph intersect the x-axis is the number of zeros. यहाँ पे ये ग्राफ नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, it means it has no zero. यहाँ पे ग्राफ यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है x-axis को. This is the graph for y is equal to fx, means y is a function of some x. यहाँ एक पॉइंट पे, तो ये एक ज़ीरो हो गया इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में. इस वाले पॉलिनोमियल में 1 2 3 बार x को इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सेस को, तो ये 3 ज़ीरोज़ हो गए. इसका मतलब है x की इन वैल्यूज़ के लिए y 0 होगा, y कोऑर्डिनेट इज़ 0. सिमिलरली यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, सो ऑन. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी आस्क मी.